یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ تم کتنی کتابیں پڑھتے رہتے ہو عبد الباری؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں، دماغ اور سمجھ عطا کیا۔ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اچھی کہانی پڑھا۔ کہانیوں کے ساتھ ساتھ کئی حدیثیں اور قرآن بھی پڑھنے ملتا ہے۔ کون سی کتاب؟ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں گا۔ ابھی تو میں نے لائبریری میں لوٹا دیا کتاب، تم چاہو تو لے سکتے ہو۔ ضرور لوں گا میں۔ وہ دیکھو نوید اسی طرف آ رہے ہیں۔ نوید، تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے کچھ سامان لانے بولے ہیں، میں وہی بازار سے لینے جا رہا ہوں۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں لائبریری میں کتاب لوٹانے آیا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں، بازار تک ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو اچھا ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ چلو۔ تمہیں پتہ ہے نوید، عبد الباری نے جو کتاب پڑھے ہے اس میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ حدیثیں اور قرآن بھی پڑھنے ملتا ہے۔ اچھا، کون سی کتاب ہے؟ اس کہانی میں ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے اور وہاں کے تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ظالم ہی ہوتے ہیں، اور اس پورے علاقے کے لوگوں پر مانو اللہ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی پڑھیں گے۔ وہ رہے آلو والے چاچا، آؤ میں آلو لے لیتا ہوں، پھر ہم آگے چوراہے تک ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے نوید۔ ارے پہلوان بھائی، ایسا مت کرو، بڑی مشکل سے تو مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں، تم اتنا کم کر دو گے تو میں تو بڑے نقصان میں رہ جاؤں گا۔ بس کرو، کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ اب اور بولے تو کچھ پیسے نہیں دوں گا۔ چلو اے ٹماٹر والے، نکالو ٹماٹر، اب تمہاری باری ہے۔ جی پہلوان بھائی۔ کیا بات ہے چاچا، کیا اس شخص نے پیسے نہیں دیے آپ کو؟ ارے بیٹا دھیرے بولو، وہ بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ سبھی غریبوں اور کمزور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ کیسا ظلم چاچا؟ وہ پیسہ نہیں دیتا اور سامان لے جاتا ہے، مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کرنا؟ کیا انہیں نہیں معلوم اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیے ہے؟ اوے اور ڈالو ٹماٹر، اتنے سے کیا ہوگا؟ جی حضور، لے لو، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ہاں، شاباش۔ آپ کو اس طرح کسی سے سامان لینے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، مجھ سے بولا لڑکا؟ ارے عبد الباری، چلو جلدی یہاں سے۔ رکو سرفراز، ہاں میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، یہ ظلم ہے۔ آپ کیوں خود کو ظالم بنائے پھر رہے ہو؟ نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ اس کی بڑی سزا دیتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھو تو ایک بچہ مجھے بتائے گا۔ جاؤ لڑکے یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا سر پھر جائے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ آپ دوسروں سے مال تو لو اور انہیں اس کی قیمت نہ ادا کرو۔ کیا آپ کو اللہ کا ڈر نہیں؟ مت کرو کسی پر ظلم و زیادتی، کسی کا حق نہ مارو۔ اچھا، ذرا بتاؤ کہاں لکھا ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ہاں، تم نے قرآن پڑھا لڑکے؟ اوہ ہاں، ذرا دوبارہ تو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اوہ، کیا ایسا اللہ کہہ رہا ہے؟ بالکل، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ ہر بات سے واقف ہے، وہ تو ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا حال کتنا برا ہوگا۔
आंखें फटी रह जाएगी जब वो सब कुछ अपने सामने देख लेंगे। ओहो, ये क्या कर रहा हूँ मैं तो बुरी चीजें नहीं पीता, बुरा खाना नहीं खाता कि अल्लाह ने मना किया है, लेकिन इस मामले में देखो तो जरा, मैं तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ। बिल्कुल, बुरी चीजें जिन्हें अल्लाह ने मना की है उन्हें खाने पीने पर सजा तो होती है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर ये गुनाह होगा कि हम दूसरों का हक मारे, लोगों पर जुल्म करे, नाइंसाफी करे। लोगों के हुकूक अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक लोग खुद ना माफ कर दे। लड़के, तुम बड़े ही नेक हो जो मेरी आंखें खोल दिए। अब मैं क्या करूं? मैंने रोजाना न जाने कितने लोगों का हक मारा, उन पर जुल्म ज्यादती किया। क्या मुझ जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह रहमान और रहीम है, वो तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। आप सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, दोबारा ऐसा ना करो और साथ ही जिन लोगों का हक छीने हो उन्हें उनका हक लौटा दो। अल्लाह बहुत ही माफ़ करने वाला है। अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, मतलब तौबा कबूल करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। क्या सच में? या अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर, मैं किस कदर लोगों पर जुल्म करता रहा। लो भाई लो, अपने टमाटर के पैसे ले लो भाई, और तुम भी अपने बटाटे के पैसे ले लो, और हिसाब करके ज़रा मुझे बता दो पिछला कितना पैसा देना है। मैं सबको लौटा दूंगा, सबको लौटा दूंगा। अरे वाह अब्दुल बारी, ये क्या किए तुमने? जो ये शख्स इस कदर अचानक बदल गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अल्लाह सुब्हान व तआला के कलाम का असर है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे छीन ले। खैर चलो, हमें देर हो रही है। हाँ, मुझे भी। लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा रुको, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तुमने मुझे इतने बड़े गुनाह को करने से रोके, बल्कि मेरे दिल को बदल दिए। शुक्रिया तो आपको अल्लाह का अदा करना चाहिए, वही तो है जो दिलों को बदलता है। मुझे कुछ बताओ लड़के, जिससे मुझे और सुकून मिले। आहा, क्या बात कही है तुमने। नमाज पढ़कर अल्लाह से मगफिरत तलब करने से भी सुकून मिलता है। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ जिसे हम सभी को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह अपनी पनाह में रखे और हम जालिम बनने से बचे रहे। अच्छा, जरूर बताओ, मैं पढ़ूंगा। रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसे पढ़ते रहना चाहिए, खासकर जब भी हमसे किसी भी तरह का जुल्म हो जाए। इसके मायने भी बता दो हमें अब्दुल बारी, जिस तरह तुम और आपा हमें हमेशा बताते हैं। इस दुआ के मायने हैं, ऐ रब, हमें उन लोगों में ना शामिल कर जो जालिमून हैं, जो जालिम लोग हैं। मैं इस दुआ को मस्जिद में जाकर और पढ़ूंगा और सीखूंगा भी। अब हमें जाना है। अल्लाह हम सभी को हिदायत पर कायम रखे। आमीन। 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 जी पहलवान भाई। अरे डरो नहीं, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं आगे से कभी बुरा नहीं करूँगा, दुआ सीखूंगा, तौबा करूँगा, ऐसा कभी नहीं करूँगा। डरो नहीं। अब्दुल बारी, तुमने वहाँ बोले किसी भी तरह के जुल्म, तो क्या और भी तरह के जुल्म होते हैं? हाँ, जुल्म को आसानी से समझे तो इसका मतलब है कि हर वो तरीका काम जिसे वैसा ना किया जाए जैसा कि उसे करना चाहिए, तो ये उस काम या उस चीज़ के साथ जुल्म होगा जिससे हम काम ले रहे हैं। अब्दुल बारी, तुम्हारी कुछ बातें तो मेरे समझ ही नहीं आती। इतनी गहरी बात कैसे कर लेते हो तुम? आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। फेंको जोर से सरफराज। नहीं सरफराज, नॉर्मल फेंको, वरना झाड़ियों में जा गिरेगी बॉल। ठीक है अब्दुल बारी। आहा, ये भी कोई थ्रोइंग है? ये देखो, इसे कहते हैं जोर से। लो। उफ, नवेद, मैंने कहा था नॉर्मल स्पीड में फेंकना। अब हमें बॉल ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ, वो। अब चलो बॉल को ढूंढने। हाँ, वो। क्यों नहीं मिल रही है बॉल? क्यों नहीं मिल रही? कितना तंग कर रही है ये बॉल। थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते। अरे मिल जाइए बॉल भैया, कहाँ छुपे हैं?
सब तुम्हारी वजह से नवीद। अच्छी तरह से तलाशो, मजाक नहीं करो। आराम से सरफराज। देखो, कभी कभी जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि हमने ढूंढे और बस यूँ मिल जाए बॉल। सब्र से काम लो। कुरान में सूरह बकरा की एक आयत में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तब तो हमें सब्र से काम लेना होगा। सही कह रहे हो अब्दुल बारी। शायद अगर हम इत्मीनान के साथ सुकून से ढूंढते रहेंगे तो बॉल मिल ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो सब वहाँ? वालेकुम अस्सलाम आपा। हम अपनी बॉल ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिली। मैं सब्र के बारे में बता रहा था नवेद और सरफराज को, जो जल्दबाजी में गुस्सा कर रहे हैं। वाह अब्दुल बारी, ये बहुत अच्छी बात है। सब्र बहुत ज़रूरी है। और याद रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, सब्र रोशनी है। अगर आप सब्र से काम लो और परेशान ना हो तो अक्सर चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाती है। रोशनी की तरह सब्र हमें तकलीफ के वक्त रास्ता बताती है। जी आपा, दुरुस्त कहा आपने। हम खामोशी से सब्र करते मिल हुए। गई। ये देखो, मुझे बॉल मिल गई। ये देखो, बॉल तो यहाँ छुपी हुई थी। ये बॉल मिल गई। आखिरकार हमने सब्र किया और ये देखो, हमें बॉल मिल गई। देखा, जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मदद करते हैं। ये एक सबक है जो हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत अच्छे। देखो, सब्र इंसान की एक बेहतरीन खूबी है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या परेशानी महसूस हो तो अस्तगफिरुल्लाह कहो और अल्लाह से मदद मांगो कि वो तुम्हें सब्र व इस्तिक़ामत और कल्ब सुकून अता करे। कल्ब सुकून मतलब दिल को सुकून अता करे। कल्ब के मायने है दिल। ओह, अस्तगफिरुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आपा, हमें ये बताने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर आपा। व इयकुम। जाओ अब सभी खुशी से खेलो। लाओ नवेद, अब बॉल मुझे दो। ठीक है, ये लो, मैं बॉल उछाल रहा हूँ। पकड़ो सरफराज। चलो अजान हो गई, आओ पहले अपनी नमाज से फारिग हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, सब्र और सुकून के साथ हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में सब्र किया करें और सुकून के साथ अपनी कोशिश और मेहनत को जारी रखें तो अल्लाह हमारी मदद करते हैं। वैसे सब्र के मायने ये भी है कि हम अपनी कोशिश को जारी रखें इत्मीनान के साथ। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी, आज तो कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। कोई खेल नहीं, नो फन, बस बोर हो रहा हूँ मैं। हाँ, अजीब सा दिन है। लगता है आज सभी उदास है। तुम लोग उदास क्यों हो? क्या तुम्हें पता है, एक छोटी सी चीज से हम सब का मूड ठीक हो सकता है। छोटी सी चीज़? वो क्या, एक बड़ा बर्गर? या फिर एक आइसक्रीम कोन? आहा, नहीं भाई, तुम दोनों तो सिर्फ इन अनहेल्दी चीजों को ही सोचते हो। अच्छा बताओ तो, ऐसी क्या छोटी सी चीज है? सिर्फ एक मुस्कुराहट। मुस्कुराहट? अब्दुल बारी, यहाँ भूख लग रही है, बोर हो रहे हैं और तुम हमें मुस्कुराहट की दावत दे रहे हो। देखो, मुस्कुराना सिर्फ मजाक मस्ती ही नहीं है, ये एक सुन्नत भी है और सुन्नत को अदा करने से हम सवाब कमा सकते हैं। वाकई? मतलब सिर्फ मुस्कुराने पर अल्लाह सवाब देते हैं? बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। सोच लो, तुम्हें कुछ कहना भी नहीं पर सिर्फ स्माइल करके भी रिवॉर्ड ले सकते हो। अच्छा, तो यहाँ सभी मुस्कुरा रहे हो, मगर अगर नीयत अच्छी ना हो तो सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर मेरी नीयत यह है कि सरफराज के उदास से चेहरे पर इस अजीब सी स्माइल पर हंसता रहूं। अब तुम्हारी मुस्कुराहट का सवाब कैंसिल। नवेद, मेरा मजाक उड़ाकर कोई सवाब नहीं मिलेगा तुम्हें। सरफराज, तुम ठीक कह रहे हो। मुस्कुराने का असल मकसद है दूसरों को खुशी देना और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। अगर तुम्हारे मुस्कुराने से किसी का दिन बेहतर हो जाए तो ये सदका होगा और इस पर सवाब भी है। नवेद, आपा का पॉइंट समझ गए? मुस्कुराना तभी सवाब है जब उसका मकसद अच्छा हो और बस ऐसे ही किसी को यहाँ वहाँ देखकर मुस्कुराते ना फिरे, जिससे कोई गलत समझेगा और हमें बुरा समझेगा। ठीक है, मैं अब असल वाली स्माइल करूँगा।
सरफराज का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसका दिन अच्छा बनाने के लिए। देखिए अब तुम असल दीनी भाई लग रहे हो। वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ। ठीक है, चलो अब सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और अपने दिन को बेहतर बनाओ। तो दोस्तों, एक खालिस मुस्कुराहट सिर्फ एक छोटा सा अमल नहीं, बल्कि ये एक मेहरबानी का इजहार, सुन्नत और खुशी बांटने का जरिया है, जो अल्लाह की बरकतें हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। सब मुस्कुराते रहो। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। सरफराज, तुम्हारे देखो, तुम्हारे सॉक्स का रंग तो देखो, एक लाल एक पीला। सर्कस का जोकर लग रहे हो। अरे सुबह जल्दी में गलत सॉक्स पहन लिया, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नवेद, तुम्हें लगता है ये मजाक है, लेकिन दूसरों को शर्मिंदा करना कभी मजाक नहीं होता। ओ अब्दुल बारी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। दरअसल हंसी रुकी नहीं रही थी। तुम बस करो नवेद, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बस एक मजाक था सरफराज, जोकर वाली बात, बस एक मजाक। मजाक वो होता है जो सबको हंसाए, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हाँ नवेद, मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुमने मेरे सॉक्स को लेकर इस तरह मजाक बनाया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं आपा। सरफराज, ये तुमने शायद गलती से अलग अलग सॉक्स पहन लिए। जी आपा, वो मैं जल्दी में। हाँ, ऐसा होता है, हम भी कई मर्तबा जल्दी में गलती से अलग अलग सॉक्स पहन लेते हैं। हम यही बात कर रहे थे। नवेद सरफराज के सॉक्स का मजाक उड़ा रहे थे और मैं समझा रहा था कि दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है। बिल्कुल सही। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। हम अगर कोई मजाक भी करे तब भी ऐसी बात करे जो सबको खुशी दे। हमारे मजाक से किसी का दिल ना दुखे। मैं समझ गया आपा, मुझे माफ़ी चाहिए सरफराज। क्या तुम अपने दोस्त को माफ़ नहीं करोगे? मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि मेरे मजाक से किसी को बुरा ना लगे। ओके, चलो माफ किया। अब मिलकर खेलते हैं और कोई अच्छा सा मजाक करते हैं। लेकिन सॉक्स को छोड़कर कोई भी साफ सुथरे मजाक हो तो ठीक है। और याद रखो कि मजाक में भी दूसरों को खुश करने के लिए कोई झूठ ऐड करना या बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना गुनाह है। ठीक है आपा, हम सभी आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरों का मजाक उड़ाना जिससे उनका दिल दुखे, ये गलत है और एक गुनाह भी, खासकर जब हम दूसरों को अपने से कम और खुद को ज़्यादा और बड़ा साबित करने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाक किए भी तो अच्छे मजाक हो जिससे सबको खुशी मिले और दिलों में मोहब्बत बढ़े, ना कि किसी का दिल दुखे। फिर मिलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले तो कहूँगा आप लोग लाइक और शेयर किया करें। देखो तो आपा, लाइक नहीं करते हैं। आहा, अब्दुल बारी, जिन्हें पसंद आएगा वो लाइक कर देंगे। हाँ, लेकिन लाइक करने से अच्छा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या आपको पता है बदुल उस्मान एनिमेशन का एक और वीडियो हाल ही में पब्लिश हुआ और यहाँ इस मॉरल विजन के स्टूडियो में हम मिलकर देखेंगे उस नए वीडियो को। आपा, आपको पता है क्या है मौजू वीडियो का? आओ क्यों ना वीडियो में ही देख ले। अब शुरू करो वरना हमारे नन्हे साथी नाराज हो जाएंगे। ओह हाँ, ये मैंने प्ले कर दिया। बेबी बदुल और उस्मान, बेबी बदुल और उस्मान, साथ में है नन्हे अम्मार। बेबी बदुल और उस्मान। बतुल, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना? ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है। हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ भाई, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। सता रहे हो मुझे। चलो अब बताओ, क्या पढ़ना चाहिए जब हम ऊपर की तरफ जाते हो? ओह हाँ, अब समझी क्यों बार बार पूछा आपने। मुझे तो पता है, आपको नहीं मालूम। यूँ कहो ना कि तुम्हें नहीं मालूम। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आपको नहीं मालूम।
अच्छा तो ठीक है, बताओ क्या कहते हैं। नहीं, पहले आप बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि आपको पता भी है या नहीं। रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। नहीं, मुझे पता है। देखो, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आ आ आ नहीं आता। सुनो, आ ओ सुभान अलहम। नहीं, ओहो, हम दोनों ही भूल गए। रुको बतुल, अभी मालूम हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बात करते हुए सीढ़ियों से चढ़ो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह को क्यों याद करना? सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते रहो। अल्लाह को क्यों याद करना? ओह, तो तुम फिर आ गए। अभी रुको। भागो रे भागो! अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो सच में दुआ पढ़ने लग गया। भागो रे भागो! सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त की दुआ। अपने सवाल को और अच्छी तरह पूछें। ओके, ऊपर की तरफ जाते वक्त की दुआ। ऊपर की तरफ जाते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। ओह, ये तो मुझे भी मालूम है। क्या जरूरत थी सुपर हीरो बनकर मालूम करने की? चलो, मालूम हुआ ना। और अब हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। पढ़ो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अरे वाह, माशाअल्लाह, तुम्हें तो सच में पता है। देखे, मैं कहती हूँ सच। तो इसके मायने भी बता दो। मायने वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे तो मालूम है। अच्छा तो बताओ भाई। अल्लाहु अकबर के मायने है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़े है। अच्छा, मुझे याद आया, बुक में लिखा हुआ है अल्लाह इज ग्रेटेस्ट। वही मतलब है। देखे, मुझे तो इंग्लिश में भी आता है। अच्छा चलो, खिलौने लेके हम नीचे खेलेंगे। नहीं, हम यहीं पर खेलेंगे। नहीं, नीचे। नहीं, ऊपर। नीचे। ऊपर। वो अम्मार आ गए। ठीक है, अम्मार जहाँ बोलेंगे वही खेलेंगे। ठीक है। बताओ अम्मार, हम ऊपर खेले या नीचे आकर? नीचे, नीचे, नीचे। अब चलो नीचे, हमें अपने छोटों की बात भी सुननी चाहिए। और उस्मान। तो हम जब कभी ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, जैसे सीढ़ियों पर से या लिफ्ट में हो या टीले और पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, तब हमें अल्लाह अकबर पढ़ते रहना चाहिए। आपको याद होगा आपा, इस मौजू पर हमने भी तकरीबन 10 साल पहले एक एनिमेशन बनाए थे। सही कह रहे हो तुम अब्दुल बारी। उस वक्त ये सब कुछ नया था, लेकिन अब तो एनिमेशंस बहुत बनने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, आप और भी एनिमेशन को हमारे चैनल पर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है, ये तो वर्जिश भी करता है, ये स्कूल भी जाता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है, ये तो पढ़ाई भी करता है और तिलावत कुरान भी करता है, ये तो बुराई से रुकता है, अम्मी अब्बा की बातों को ये हमेशा सुनता है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता